Hello friends, welcome to H2 Event Academy. In the last lecture, we have completed the discussion on the differential equation and its types. Also, we have seen the concept of order and degree of the differential equation. So let us proceed further. So in this particular lecture, we will discuss about solution of the differential equation. So let us discuss this. So what is the solution of differential equation? So it is the relation between the variables such that this relation and the derivatives obtained from the relation satisfy the given differential equation. So let us discuss this. Okay, so first we will see this question. After that we will go back to the definition for ease of understanding. Okay, so let us discuss this. What is given in question? So show that y is equal to a e to the power 2x is the solution of this differential equation. Okay, so solution क्या दिया हुआ है? Y is equal to a e to the power 2x. ठीक है, and the differential equation क्या दिया हुआ है? d2y upon dx square प्लस dy अपॉन डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है? ये सॉल्यूशन है. ठीक है, वी हैव टू शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? मतलब इसका डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन का? इट इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, और y is dependent variable, means y is equal to f of x. ठीक है, तो y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो y is the dependent variable because it is dependent on the value of x and x is the independent variable. समझ में आ रहा है? So the first line is it is the relation between the variables and this relation and the derivatives obtained from this relation. Okay, so let us obtain the derivatives based on this relation. So let us find dy upon dx. So dy upon dx is, let us differentiate this. So this is equal to 2a to the power 2x और d2y upon dx square क्या आएगा? Is equal to, let us differentiate this once again. So this is 4a e to the power 2x. Okay, तो ये आ गया मेरा derivatives. Okay, so what is given in the definition? It is the relation between the variables, ये हमने देखा, such that this relation and the derivatives obtained from this relation. So these are the derivatives obtained from relation, that is y is equal to a e to the power 2x. ठीक है, तो ये relation और derivatives obtained from this relation satisfy the given differential equation. ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखो. d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये है और dy बाई dx की वैल्यू ये है. सो लेट अस पुट दिस इन दिस इक्वेशन. सो वी हैव 4a e to the power 2x प्लस 2a e to the power 2x माइनस 6 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? दिस वन, a e to the power 2x. तो ये क्या हो जाएगा? 6a e to the power 2x माइनस 6a e to the power 2x, ये आ गया 0. ओके, इज इक्वल टू, दिस इज RHS के इक्वल आ गया ना? समझ में आ रहा है? So this relation and the derivatives obtained from this relation is satisfying the given differential equation. Hence we can say that this one is the solution of this given differential equation. Okay, so now let us discuss further. देखो, ठीक है, ये तो हो गया solution of the differential equation. Now we have types of the solution. ठीक है, so first one is general solution, second one is particular solution, and third one is the singular solution. Okay, so let us discuss this. देखो, so we have the first one as the general solution, second one is the particular solution, and third one is the singular solution. देखो, ठीक है, तो फर्स्ट वन में क्या है? contains as many arbitrary constant as the order of differential equation. ठीक है, तो ये मेरा, let us understand this with this क्वेश्चन. ओके, कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट. तो जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं? जो कि उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है. समझ में आ रहा है? तो जैसे ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर क्या है? 1 है ना? तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा? 1 होगा. ठीक है, नाउ वी हैव पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कंटेन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट. पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है. और सेकेंडली इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट. मतलब जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसमें कुछ वैल्यूज देने पे
वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन, कंटेन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, और सिंगुलर सॉल्यूशन कैंट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग particular values to the arbitrary constant. Okay, so let us understand this concept based on this question. Okay, so we have show that y is equal to mx plus 1 by m, y is equal to x plus 1 and y is equal to x square are the solutions of differential equation. ये differential equation दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, y is equal to mx plus 1 by m, ठीक है। दूसरा है y is equal to x plus 1, ठीक है। और तीसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें क्या शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी m, लेट अस पुट दिस इन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इफ वी गेट दिस ओरिजिनल इक्वेशन देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो x टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx की वैल्यू m है, xm प्लस 1 अपॉन m, ठीक है। तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा ना, इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंडली y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ से निकालो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, so let us put this, so y is equal to x times of 1 plus 1 upon 1, so this is 1, so y is equal to x plus 1, so ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल आ गया, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको देखो, इससे क्या आएगा 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4, सो यहाँ से क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन y, लेट अस पुट दिस इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सो y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन y, तो ये क्या हो जाएगा y बाई 2, और y माइनस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा y बाई 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो पहला देखो, कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि dy अपॉन dx का पावर 1 है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरा जो सॉल्यूशन है इसमें इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ना मेरा, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, m है, मतलब 1 है, सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 एक कांस्टेंट है लेकिन ये आर्बिट्री नहीं है ना, m इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है जो कि m है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी 1 है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस मीन्स दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये वाला देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, 0 है ना, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, समझ में, 1 एक कांस्टेंट है बट आर्बिट्री नहीं है, ओके। सो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज हैविंग नो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला तो आएगा नहीं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए जो कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब अगर ये 1 होता, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाता है जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। तो लेट अस चेक दिस लेट अस चेक दिस विद द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वेदर इट इज गेटिंग अलाइंड विद दिस डेफिनेशन और नॉट, ठीक है। इसमें क्या है, कंटेन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। दूसरा क्या है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो देखो जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है इसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम, ठीक है। तो इसमें अगर 1 m इज इक्वल टू 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, समझ में आ रहा है। तो इस जनरल सॉल्यूशन से इसको ऑब्टेन किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है, m की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन में m इज इक्वल टू 1 रख दें
तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। सो हियर वी आर गिविंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू द आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके, एंड देन आफ्टर पुटिंग m इज इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे अलाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। y is equal to x plus 1 is the particular solution because it is being obtained from the general solution by putting m is equal to 1। ये लिखा है ना, can be obtained from general solution by giving particular values to arbitrary constant। तो arbitrary constant क्या है? m है, तो m is equal to 1 रखने पे ये हमारा y is equal to x plus 1 obtain हो जा रहा है। ठीक है, now let us discuss this one, y square is equal to 4x। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। m की वैल्यू कुछ भी रख लो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो पहला क्या है कंडीशन? कंटेन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 1 सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड में क्या है? कैंट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, तो इस जनरल सॉल्यूशन से ये क्या ऑब्टेन नहीं किया जा सकता बाय गिविंग एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। सो दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्या है? जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।